ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णप्रदान् सहगणललिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुवेव च पतितराणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यस प्रभु जी। Okay. The breathing exercise of the yoga system, which is generally practiced, is just the beginning of the system. Meditation on the super soul is just a step forward. Achievement of wonderful material success is also only a step forward. But to attain direct contact with the super soul and to take dictation from him is the highest perfectional stage. Yes, Naveen Prabhuji. Yes, Guruji. The breathing exercises and meditation practices of yoga are very difficult in this age. They were difficult even. ये पढ़ चुके हैं प्रभु जी हम. नहीं प्रभु जी एक सेकंड और मैं वो कंफर्म कर लेता हूँ। ये भी पढ़ चुके हैं. The last paragraph. The meditation was in the right earnest was possible in the golden age. At that time lived for 100,000 years on the average. नहीं प्रभु जी लास्ट यही छोड़ा था 131 पे. अच्छा. यस प्रभु जी वो वीडियो अपलोड होता है ना प्रभु जी तो वहां से कंफर्म कर लिया मैंने. Okay. तो कहाँ से पढ़ूं मैं? यहीं से ब्रीथिंग एक्सरसाइज. अच्छा ठीक है. The breathing exercise and meditation practices of yoga are very difficult in this age. They were difficult even 5,000 years ago, or else Arjuna would not have rejected the proposal of Krishna. This age of Kali is called a fallen age. At the present moment, people in general are short-living and very slow in understanding self-realization or spiritual life. They are mostly unfortunate, and as such, if someone is a little bit interested in self-realization, he is misguided by so many frauds. The only actual way to realization of the perfect stage of yoga is to follow the principle of Bhagavad Gita as they were practiced by Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is the simplest and highest perfection of yoga practice. Hari Bol. Yes, issue proof. हरे कृष्ण प्रभु जी. आवाज आ रही है मेरी? Yes प्रभु जी. Yes. Lord Chaitanya practically demonstrate Krishna consciousness yoga simply by chanting the holy names of Krishna, as they are mentioned in the Vedanta, the Srimad Bhagavatam. The largest number of Indians follows this yoga practice. In the United States and other countries, also it is gradually growing in many cities. It is very easy and practical for this age, especially for those who are serious about success in yoga. No other process can be successful in this age. Yes प्रभु जी ये भी है. आप पढ़ लीजिए प्रभु जी ये भी. Okay, I'll J. The meditational process in the right earnest was possible in the golden age, Satyuga, because the people at that time lived for 100,000 years on the average. स्वाति माता जी. Hare Krishna.
In the present age, however, if you want success in practical yoga, तो मुझे लास्ट का दिख नहीं रहा है अपनी स्क्रीन पे ना, आपने शायद जूम किया होगा। हाँ, in the present age, however, if you want success in practical yoga, take to the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and feel for yourself how you are making progress. One should know for himself how much he is progressing in yoga practice. Okay. Anushka Mataji. Hare Krishna. In the Bhagavad Gita, this practice of Krishna consciousness is described as Rajavidya, the king of all erudition, Rajaguyam, the most confidential system of spiritual realization, Pavitram, the purest of all that is pure, Susukham, very happily performed, and Avyayam, inexhaustible. Yes, Kanak. Hare Krishna. Those who have taken to this sublime bhakti yoga system, this practice of devotional service and transcendental love of Krishna, can testify to how they are nicely enjoying its happy and easy execution. Yoga means controlling the senses, and bhakti yoga means purifying the senses. When the senses are purified, they are also automatically controlled. You cannot stop the activities of the senses by artificial means. But if you purify the senses, not only are they kept back from rubbish engagement, but also they become positively engaged in transcendental service to the Lord. Krishna consciousness is not manufactured by us through mental speculation. It is prescribed in Bhagavad Gita, which says that when we think in Krishna, chant in Krishna, live in Krishna, eat in Krishna, talk in Krishna, hope in Krishna, and sustain in Krishna, we return to Krishna without any doubt. And this is the substance of Krishna consciousness. Yes, Prabhuji. Next, yes. The incarnation of love of God. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and he is teaching how to develop love of God by a very simple method. People are embarrassed by so many methods of realization. They cannot take to the actual ritualistic processes of meditation or yoga. It is not possible. Therefore, Lord Chaitanya says that if one takes up this process of chanting, then immediately he can reach the platform of realization. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the golden avatar, appeared in India nearly 500 years ago. It is the custom in India that when a child is born and an astrologer is called for, when Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared 5,000 years ago, Garga Muni was called by his father, and he said this child formerly incarnated in 3 complexions, such as red or golden, and now he has appeared in blackish color. Krishna's color is described in the scriptures as blackish, just like the color of cloud. Lord Chaitanya is understood to be Krishna appearing in golden complexion. क्या किसी को कुछ याद आ रहा है? Prabhuji, red complexion क्या था Prabhuji? Red तो ये पढ़ा हुआ लगा मुझे तो। हाँ प्रभु जी मैं बोल ही रहा था ये ये पढ़ा पढ़ा हुआ है, हाँ, कल ही पढ़ा था, राइट। मुझे इसलिए भी याद है कल क्योंकि शायद मुझ आप पे थे नहीं ना उदित प्रभु, शायद मैं नहीं था इसलिए। कल। हाँ कल पढ़ा गया है क्या ये? हाँ, कल ये ही याद पढ़ा नहीं आ रहा है, मुझे, लेकिन पढ़ा है हमने। हाँ शायद कल ही पढ़ा है। कल प्रभु नहीं चैतन्य पढ़ा महाप्रभु जी के कल बारे ही में काफी पढ़ा है, पढ़ा था, कल ये सब आया था। कल ही पढ़ा है क्या? यस यस हाँ हाँ कल ही पढ़ा था ये। अच्छा, अंशु माता जी हैं कॉल पे? सोच लिए कलयुग में हम लोगों का क्या हाल है। हाँ जी प्रभु जी। माता जी कल ही पढ़ा था क्या ये? हाँ जी प्रभु जी, कल ही पढ़ा है। तो बस तो Prabhuji तो ठीक है, नवीन 100%। प्रभु ये आप तो सही फिर पढ़ ही कह रहे लिया। थे, आगे स्टार्टिंग चलते में हैं ही फिर। कहाँ तक पढ़ा था फिर? आगे करते चलिए फिर। Yes, Prabhuji, yes. नहीं, आप पूरी बुक ही खत्म कर देंगे मुझे लग रहा है जो इतना भी नहीं पढ़ लिया तो। प्रभु हाँ जी Prabhuji। ये बुक कंप्लीट नहीं किए हैं अभी, थोड़ा आराम से हम देखने दीजिए आप। ये मूडत वगैरह नहीं हुआ है फिर को लगता है। हाँ ये नहीं अभी पढ़ा है। थोड़ा ऊपर ही चलिए प्रभु जी, इतना कवर नहीं होता हमारा। हाँ ये है, यहाँ ये वाला है। Why did Lord Chaitanya appear? Okay.
यहाँ से एक बार नीचे, इससे नीचे वाला पैराग्राफ दिखाना। व्हाट इज स्पिरिचुअल बॉडी? हाँ ये यहाँ ये वाला है, व्हाट इज स्पिरिचुअल बॉडी, वो तो हो गया था, क्यों अपीयर हुए। ओ क्योंकि उससे पहले ये बताया गया है कि भगवान जो है आते हैं, वो आते हैं इसलिए कि डीमन को मारना है और डिवोटीज का उद्धार करना है। तो फिर कोई पूछ सकता है तो चैतन्य महाप्रभु भी तो भगवान ही है, वो ऐसा क्यों नहीं किए? तो फिर उस ऊपर वाले पैराग्राफ में उस चीज का आंसर है कि भाई आदमी पुराने युगों में जब भी भगवान आए इनकारनेशन में क्या होता था, डीमन होते थे, वो डिवोटीज को परेशान करते थे, तो भगवान डिवोटीज को बचा के डीमन को मार देते थे। बट चैतन्य महाप्रभु जब आए तो देखे कि सभी डीमन है और ये अपने खुद के लिए डीमन है, ये खुद के लिए ही डीमन है, खुद ही को मार रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब क्या करना है तो फिर उन्होंने कृष्ण प्रेम देके सबको बचा लिया, क्योंकि मारेंगे किसको। तो वो इस वाले पैराग्राफ में इसका आंसर मिला है। फिर इसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी प्रभुपाद समझा रहे हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी क्या है। ओके प्रभु जी, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। What is a spiritual body? A spiritual body is a body which is free from death, birth, disease and old age. It is an eternal body full of knowledge. Phone आप कम कर सकते हैं, हाँ बस that's all. Full of knowledge and bliss. Different bodies are created by different desires. As long as we have desires for different kinds of enjoyment, we have to accept different kinds of material bodies. Krishna, God, is so kind that he awards whatever we want. If we want a tiger's body with a tiger-like strength and teeth with which to capture animals and suck fresh blood, then Krishna will give us the opportunity. And if we want the body of a saintly person, a devotee engaged only in the service of the Lord, then he will give us that body. That is stated in the Bhagavad Gita. प्रभु जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये भी हमने पढ़ा था कल। अच्छा हो गया क्या ये भी? तो अभी आप बताएंगे माता जी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन टाइगर वाला पढ़ा था। नहीं ये नेक्स्ट पैसेज हो गया, इफ अ पर्सन एंगेज्ड इन योगा, ये हो गया क्या? हाँ प्रभु जी ये वाला भी हो गया था कि आप इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना उदित प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, ये प्रभु जी, इफ अ पर्सन एंगेज्ड इन योगा, ये भी हो गया। अच्छा, कृष्णा सेज इन द भगवद गीता। माता जी हाँ हाँ ये वाला हो गया कि वो अपने कर्मास के हिसाब से उसको होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। नहीं हुआ, ये हो गया क्या? दर्शन गिवन बाय कृष्णा इन भगवद गीता। नहीं वाला नहीं हुआ है। खैर इस सब चीजों में ये तो पता चला है कि उदित प्रभु आप छुट्टी नहीं ले सकते कभी भी, आपको अलाउड नहीं है। आपको अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ये पूरा रीडिंग का हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहीं से पढ़ेंगे फिर कनक माता जी। हाँ जी प्रभु जी यहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं से पढ़ते हैं फिर। किसका टर्न है नेक्स्ट? नवीन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। This assurance was given by Krishna in the Bhagavad Gita, but there were many fools like me who could not understand Krishna. In the Bhagavad Gita, they are described as mudhas. Mudha means rascal. And Krishna says in the Gita, they do not know what I actually am. So many people misunderstood Krishna. Although Krishna gave us this message of the Bhagavad Gita so that we could understand him, many people missed the opportunity. Therefore, Krishna, out of his compassion, came again as a devotee and showed us how to surrender unto Krishna. Krishna himself came to teach us how to surrender. His last instruction in the Bhagavad Gita is to surrender. But people, Buddhas, rascals said, why should I surrender? Therefore, although Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, this time he teaches us practically how to execute the mission of Bhagavad Gita. That is all. Chaitanya Mahaprabhu is teaching nothing extraordinary, nothing beyond the process of surrendering to the Supreme Personality of Godhead, which was already taught in Bhagavad Gita. There is no other teaching, but the same teaching is presented in different ways so that the different kinds of people may take it and take the opportunity to approach God. Yes, Ishu Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu gives us the opportunity to reach God directly. When Rupa Goswami, the principal disciple of Lord Chaitanya, first saw Chaitanya Mahaprabhu, he was a minister in the government of Bengal, but wanted to join Chaitanya Mahaprabhu's movement. So he gave up his position as a minister, and after joining, when he surrendered, he offered a nice prayer
to Lord Chaitanya. This prayer says Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Namne Gaurav Vishnu Namah. Namne Gauratesha महाप्रभु के Namah. लिए प्रणाम मंत्र है. Right. My dear Lord, you are the most munificent of all the incarnation. Why? Krishna Prema Padayate, you are directly giving love of God. You have no other purpose. Your process is so nice that one can immediately learn to love God. Therefore, you are the most munificent of all the incarnation, and it is not possible for any personality other than Krishna himself to deliver this benediction. Therefore, I says that you are a Krishna. Krishna Chaitanya Namine. You are a Krishna, but you have used the name Krishna Chaitanya. I surrender unto you. Hare Krishna. Jai. Yes. Swati Mataji. So this is the process. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and he's teaching how to develop love of God by a very simple method. He says simply to chant Hare Krishna, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Hare Name Kevalam, Now Nastev, Gatir Anyatha. In this age, simply go on chanting the Hare Krishna mantra. There is no other alternative. People are embarrassed by so many methods of realization. They cannot take to the actual ritualistic processes of meditation or yoga. It is not possible. Therefore, Lord Chaitanya says that if one takes up this process of chanting, then immediately he can reach the platform of realization. Yes. Anushka Mataji. The chanting process offered by Lord Chaitanya for achieving love of God is called Sankirtana. Sankirtana is a Sanskrit word. Sam means samyak, complete, and kirtan means glorifying or describing. So complete description means complete glorification of the Supreme or the Supreme complete whole. It is not that one can describe anything or glorify anything, and that will be kirtan. From the grammatical point of view, that may be kirtan, but according to the Vedic system, kirtan means describing the supreme authority, the absolute truth, the supreme personality of Godhead. That is called kirtan. Kanak. This devotional service begins with the method of Shravan. Shravan means hearing and Kirtan means describing. One should describe and another should hear, or the same man himself can describe and hear. He does not need anyone else's help. When we chant Hare Krishna, we chant and hear. This is complete. This is a complete method. But what is that chanting and hearing? One must chant and hear about Vishnu, Krishna, not of anything else. Shravan Kirtanam Vishnu. One can understand Vishnu, the all pervading absolute truth, the supreme personality of Godhead, by the method of hearing. We have to hear. If one simply hears, that is the beginning. One does not need any education or development of material knowledge. Just like a child, as soon as he hears, immediately he can respond and dance. So by nature, God has given us these nice instruments, ears, so that we can hear. But we must hear from the right source. That is stated in Srimad Bhagavatam. One must hear from those who are devoted to Supreme Personality of Godhead. They are called Satam. If one hears from the right source, from a realized soul, then it will act. And these words of God or Krishna are very relishable. If one is intelligent enough, he will listen to what is spoken by realized soul. Then very soon he will be released from material entanglements. This human life is meant for advancing on the path of liberation, that is called Apavarga, freedom from entanglement. We are all entangled. Our acceptance of this material body means that we are already entangled. But we should not progress in the process of entanglement. That process is called karma. As long as the mind is absorbed in karma, we will have to accept a material body.
At the time of death, our mind may be thinking, oh, I could not complete this work. Oh, I am dying. I have to do this. I have to do that. This means that Krishna will give us another chance to do it, and so we'll have to accept another body. He will give us the chance. All right, you could not do it. Now do it. Take this body. Therefore, Srimad Bhagavatam says these rascals have become madly intoxicated. Because of intoxication, they are doing something they should not have done. What are they doing? Maharaj Dhritarashtra is a very good example. Maharaj Dhritarashtra was cunningly planning to kill the Pandavas in order to favor his own sons. So Krishna sent his uncle Akrura to advise him not to do that. Dhritarashtra understood Akrura's instructions, but he said, my dear Akrura, my dear Akrura, what you are saying is quite right, but it does not stand in my heart. So I cannot change my policy. I have to follow this policy and let whatever happens take place. Yes. Naveen Prabhuji. Yes, Prabhuji, thank you. So when men want to satisfy their senses, they become mad. And in this madness, they will do anything and everything. Before I go further, how many people have experienced this? Yes, Prabhuji, मतलब वो कभी ना कभी तो होता ही है. Yes. Yes, yes. जैसे आपको अगर कॉलेज का टाइम याद हो तो अभी रात को खाना ही है, तो फिर रात को फिर बाइक लेके भले 1 घंटे ड्राइव करके जाना हो तभी जाएंगे, खा के आएंगे. Yes, Prabhuji. अभी तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो. मिडनाइट क्रेविंग का नाम देते हुए प्रभु फिर रहता है. For example, there have been many instances in material life where someone has become mad after something and has committed a criminal act such as murder. The person could not check himself. जो ये बदले का हो जाता है ना, जब कभी के दिमाग में बदला बैठ जाता है तो उस समय तो बस केवल बदला ही रहता है दिमाग में, तो they don't even think about anything. Yep. Similarly, we are accustomed to sense gratification. We are mad and therefore our minds are fully absorbed in karma. This is very unfortunate because our body, although temporary, is the reservoir of all misfortunes and miseries. It is always giving us trouble. These matters are to be studied. We should not be mad. Human life is not meant for that. The defect of the present civilization is that people are mad after sense gratification. That is all. They do not know the real value of life, and therefore they are neglecting the most valuable form of life, this human form. Issue Prabhu. बस एक और छोटा सा कमेंट प्रभु जी इसमें, ये इसी पे मतलब हमारा जब सेंसेस बोलो इन अ वे इतने सटल होते हैं ना, हमारा ईगो भी एक तरह से ईगो को सेटिस्फाई करना इतना स्ट्रांग हो जाता है ना ईगो कि, और ये चीज डिवोटिस के बीच में भी आई थिंक, आई डोंट नो, शायद नहीं एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, बट मैंने पर्सनली की वहां पर भी हमारा ईगो आ जाता है कि वो डिवोटी जैसे अगर मंदिर में है उस समय, या कोई डिवोटी किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या किसी सेवा में है, तो हम उस सेवा में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ईगो इतना स्ट्रांग है ना कि नहीं, और वो कहीं ना कहीं वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेंस इनडायरेक्टली. Yeah, so Ashwin Bro, you want to make comment or something? No, I agree, Guruji. Yes. I think recently we were discussing this point with another senior devotee. तो वो भी यही बोल रहे थे कि जैसे सेंसेस के ऊपर माइंड आया, माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ऊपर फॉल्स ईगो, और फिर फॉल्स ईगो के ऊपर सोल. तो सोल सटल, सबका सबसे सटल पार्ट हो गया सोल. तो एक तो क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं कि सोल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर उसके नीचे फॉल्स ईगो, उसके नीचे इंटेलिजेंस. एक तरह से देखा जाए तो सेंसेस जो हैं वो इंटेलिजेंस के भी नीचे, माइंड के नीचे आती हैं सेंसेस. तो सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई कि वो अगर कोई व्यक्ति उन्हें पुल करना चाह रहा है, किसी मतलब वो किसी व्यक्ति को पुल करती हैं अगर किसी गलत चीज की तरफ, तो माइंड और इंटेलिजेंस भी उसी काम में लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि
किसी की सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो कोई बैड हैबिट है मान लो ड्रिंकिंग की, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया उस दिन, वो ऐसे बस चला गया और पीने लगा। तो एक तरह से माइंड ने भी सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस ने भी बोला उसको कि हाँ कहाँ मिलेगी तुझे इस समय ड्रिंक। तो जब ऊपर लेवल पे आ रहे हैं तो सेंसेस कैसे वीक पड़ रहे हैं, मतलब जो ऊपर का स्तर है माइंड और इंटेलिजेंस का, तो उनको तो सेंस को चुप करा देना चाहिए, इंटेलिजेंस को माइंड को और माइंड को सेंसेस को चुप करा देना चाहिए कि अरे तुम ड्रिंक कैसे करना चाह रहे हो भाई। तो क्वेश्चन ये बन रहा था, तो उसमें वो समझा रहे थे कि जैसे जैसे कोई गाड़ी है ना, मान लीजिए कोई ट्रक है मान लीजिए, तो उसका सिस्टम क्या है कि ट्रक में आगे एक ड्राइवर है और वो पूरा उसके पीछे जो भी सामान वगैरह लदा हुआ है उसको उसे चलाना है। तो ड्राइवर इज द मेन पर्सन, उसको उस गाड़ी को चलाना है। पर मान लीजिए कि वही गाड़ी जो है, वो ट्रक जो है, वो अगर किसी ऐसी रोड पे जो थोड़ा एलिवेटेड सी रोड्स होती हैं, तो क्या होगा ना कि वो ट्रक फिर थोड़ा बैक साइड में चलने लगेगा, करेक्ट ना। जो उस रोड पे थोड़ा चढ़ाई शुरू करेगा ट्रक, थोड़ी रोड जो जैसे होते हैं ना वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ी ऊंची होती है वो रोड्स, तो उस पे अगर वो चढ़ेगा ऐसी रोड पे, तो क्या होगा कि वो पीछे की तरफ चलने लगेगा, मान लो ऐसी सिचुएशन बनती है। तो कहने को तो ड्राइवर की पोजीशन हायर है, वही चलाना चाहिए पूरे ट्रक को, बट वो गलत डायरेक्शन में चलने लगता है ना। तो कह रहे हैं कि इसी तरह शास्त्रों में सही चीज बताई गई है कि एक्चुअली आप कैसे चलाओ इस शरीर को, इंटेलिजेंस सोल के स्तर पे चलाओ, वही मेन ड्राइवर है इस पूरी बॉडी का, करेक्ट है। पूरी बॉडी का मेन ड्राइवर क्या है, सोल। तो वही भी सोल रिलेटेड एक्टिविटीज ही करो, तो सोल को ड्राइव करने दो, फॉल्स ईगो को और इंटेलिजेंस को और माइंड को और सारे सेंसेस को, वो मेन ड्राइवर है इस बॉडी का। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जितना ज्यादा उस सटलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज सोल उसके ऊपर उठते रहते हैं, उतने ही ज्यादा हम ये बोलेंगे कि हम गलत डायरेक्शन में जाते रहते हैं। जैसे प्योर मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो तो पूरा सेंसेस के स्तर पे ही काम कर रहा है, तो पूरा प्रभुपाद हमेशा बोले कि नॉन डिवोटीज आर गोइंग टू हेल, है ना। तो फिर वैसे ही है, कुछ लोग हैं वो इंटेलिजेंस से फॉल्स ईगो के लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे पहाड़ की चोटी चढ़ जाना, है ना, नाम होगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे ये वो। तो वो एक पॉइंट आता है इसमें कि भाई जो जितना सोल से अलग होके काम करे उतना ही वो दुख पाएगा। दूसरा फिर नवीन का जो पॉइंट आता है कि डिवोटी एसोसिएशन वाला, जिसमें क्या होता है कि अब डिवोटीज का कैसे रहता है ना कि डिवोटीज ये ग्रॉस सेंसेस से तो वो बहुत आसानी से बच जाते हैं जब करते हैं ना डेली। जैसे मान लीजिए कि हम मूवी वगैरह नहीं देखते, अब हम मूवी नहीं देखते, मन भी नहीं करता हमारा, तो मूवी वही छोड़ दिए, है ना। ऐसे या गलत गाने वाने नहीं सुनते, ये पहले जैसे सुनते थे बहुत, हम किसके गाने सुनते थे, जैसे मतलब ये मूवीज वगैरह के गाने सुनते थे, वो सब बंद हो गया हमारा, है ना। गलत चीज नहीं खाते, अब सिर्फ प्रसाद खाते हैं हम, है ना। गलत चीज को से टच नहीं करते हैं हमेशा, डीटी वैसे देखते हैं टच हमेशा, क्या कहते हैं प्रसाद टच करते हैं, है ना। तो ऊपर का तो चला गया, बट अभी हो क्या रहा है कि माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो के लेवल पे इतनी आसानी से नहीं जाता है, उसके लिए बहुत हायर जपा करना पड़ता है, एडवांस लेवल का उसमें भक्ति करनी पड़े तब वो जाता है। तो जब तक हम न्यूफाइड स्टेज पे हैं तब तक जैसा कि नवीन प्रभु ने एग्जांपल दिया वो चालू रहता है कि अ, कि मेरी इंटेलिजेंस, मैंने शास्त्रिक कमेंट जो इस पे दिया मेरा अच्छा है, पता नहीं वो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस टाइप से मेरी इंटेलिजेंस अच्छी है, या मेरे माइंड में आया कि मैं भक्ति ऐसी करूँ, मैं अपने को, मेरा फॉल्स ईगो सेटिस्फाई नहीं होता उस ग्रुप में जाके, वो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे तो कुछ समझते नहीं है। तो इस तरह से वो चीजें जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सटल होती है। गुड थिंग इज दैट वी आर प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा। तो श्री प्रभुपाद की, सब वैष्णवों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग इन सब चीजों से भी ऊपर उठ के फिर सोल के लेवल पे जब आएंगे तब हम एलिजिबल हो जाएंगे भगवत धाम जाने के लिए। तो जो भी अभी इस तरह का भाव हमारे अंदर आ रहे हैं या किसी अंदर के अंदर आ रहे हैं, अभी वो सभी न्यूफाइट स्टेज में ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा समराइज किया पूरी, थैंक यू सो मच। हमारे टाइम तो हो गया है, बट इफ वी वांट टू कंटिन्यू वी हैव अनदर 9 मिनट्स इन द मीटिंग। या मुझे मेरा एक डाउट है, इसमें आपने बोला मतलब हम ही वेरेडिक तभी कर सकते हैं जब हम एक हाईएस्ट लेवल का जपा करें, लेकिन अभी इस लेवल पे हम शायद उस फॉल्स ईगो की वजह से काफी ज्यादा सफर करते हैं, हाँ तो उसको कैसे कंट्रोल
को कैसे कम करने की कोशिश करे, क्योंकि फुल मैंने सीखो वो को देखा है। फुल नहीं, मैं आपकी आवाज कट गई। फुल सीखो को कैसे कम करने का प्रयास करें, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी प्रभु जी। ओके ओके। दिल्ली में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की एक क्लास थी, तो मैंने उनसे सेम प्रश्न पूछा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रश्न था मेरा। और मैं जनरली प्रश्न पूछने में थोड़ा हेजिटेट करता हूँ क्लास में। किसी ने मुझे प्रश्न का हाथ पुश किया था कि नहीं नहीं कुछ है तो पूछ लीजिएगा, मैंने कहा, चलो ठीक है। हिम्मत करके मैं सेम प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? वो कह रहे थे, आई ट्रेवल टू रशिया, जापान and started traveling Pakistan also, and including other parts of India. And I realized everywhere questions are same. ऐसे बोले वो मेरे को। तो उन्होंने बोला कि सब क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप अटेंटिवली जब कीजिए। वो बोले अटेंटिवली अगर आप हाँ है, मतलब मैंने ये खुद से फील करा है कि मैं अपनी भी बात कर रही हूँ और सबकी भी, जो मैंने आसपास फील करा है, या तो वो मेरा फॉल्स ईगो है, जो मैं दूसरों के लिए भी वही फील करती हूँ कि जब हम जपा करते हैं ना, तो एक उसमें भी ईगो आ जाता है कि वी आर सो गुड डिवोटीज कि हम जपा कर रहे हैं। हाँ, वो इनिशियल स्टेज में रहता है, तो इसलिए हम जब नए नए भक्त बनते हैं तो बहुत कोहराम मचाते हैं परिवार में। अरे आप सब हाँ, लोग नरक जाओगे, ये जाओगे, हमें लगता है हम बहुत एडवांस है। मतलब मैं मंदिर में सर्विस करने गई थी, तो मैंने बोला कि मैं भगवान की माला बनवा सकती हूँ, तो उन्होंने सीधा मुझसे ये बोला कि आप 16 माला करते हो। मैं वहां पे झूठ भी बोल सकती थी कि हाँ मैं करती हूँ, तो वो मुझे सेवा करने देते। और वो मतलब लड़कियां ही थी, बहुत वैसी डिवोटीज नहीं थे, क्योंकि उनका बोलने का तरीका भी बहुत गंदा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो माला कर रहे हैं वहां पे और वो ऐसे भगवान की सेवा ले रहे हैं, तो उनमें भी इतना ज्यादा ईगो है कि हम तो 16 माला कर रहे हैं और फिर हम भगवान के लिए माला बना रहे हैं, कि हम दूसरे को इतना ज्यादा डीमीन कर रहे हैं कि कोई भगवान की सेवा करने आया है, हम उससे ये बोल रहे हैं आप माला करते हो तो भगवान की सेवा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, कई बार हम लोग जब जब करते हैं ना माता जी, क्या हो रहा है ना, बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, तो कम्युनिकेशन वाइज अगर किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो हाईवे पे नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो हाईवे पे हम सब हैं जो जब कर रहे हैं, हाईवे पे बढ़े जा रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ, इसमें से ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो कम्युनिकेशन वाइज उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, ऐसे एटमोसफेयर में वो रहे हैं कि वो अगर एक माला भी करते हैं तो इतने अच्छे से आपसे बात करेंगे, कुछ ट्रेनिंग का पार्ट होता है एक्चुअली, है ना। तो हाँ कई जी, हाँ बार जी। हमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, मेरे को भी, आप सभी लोग का आशीर्वाद दीजिएगा कि हम जो जिस भी वैष्णव से हम डील कर रहे हैं, तो उसके बोलने पे ना जाएं, क्योंकि सी कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, करेक्ट ना। Yes, उसका प्रभु। जब तो हृदय का मैटर है, और हो सकता है धीरे धीरे जब ठीक होगा बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी, बट हमें अपना अपना इंटरेस्ट ये देखना है कि मैं कैसे ये सर्विस पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि 16 माला वाला क्वालिफाइड है, तो बोले ठीक है मैं 16 माला करूंगी ताकि मैं भगवान की ये वाली सेवा के लिए एलिजिबल हो पाऊँ। उन्होंने कैसे बोला, हम्म। वो बोला वो तो उनका बिजनेस है, उनका और कृष्णा के बीच की डीलिंग है। बट यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये पता चल गया, ठीक है भाई, हम इसमें 16 माला करवाने जो कर सकते हैं, तभी हम एलिजिबल हैं इस सेवा के लिए। नाउ आई विल डू 16 राउंड्स टू बिकम एलिजिबल टू डू दिस सर्विस, करेक्ट ना। वहाँ हमारा बेनिफिट होगा, सही है तो ना। प्रभु मतलब इस बात को लेके गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ ऐसा ऐसा अगर हम न्यू डिवोटी जाते हैं, जैसे मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो उन्हें ना, मतलब मैं हमारा पर्पस यही होता है उन्हें ले जाने का कि वो कोई सर्विस में एंगेज हो, तो उनसे भी सेम, उन्हीं से सेम क्वेश्चन पूछा था। हम्म। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर वो सेवा में एंगेज होंगे, तो जैसे होता है ना कि अगर हम भगवान की कोई सेवा करते हैं तो उसमें ज्यादा एकदम से हम कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूफाइड डिवोटीज को एकदम मना ही कर दें कि नहीं आप पहले माला करो तभी आप ये करोगे, तो इज इट राइट? हाँ, तो ये क्या है ना, टेम्पल्स के स्टैंडर्ड रहते हैं कुछ। तो हम्म। अगर किसी का एक्चुअली माला वगैरह का है तो घर में भी वो रख सकते हैं, उनके लिए माला बना सकते हैं, भगवान के घर में स्थापित करके उसके लिए कर सकते हैं। बट टेम्पल के ना अपने स्टैंडर्ड्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सोचें कि ऑल्टर के अंदर जाके भगवान की ड्रेसिंग कोई कर ले, इससे वो एंगेज हो जाएंगे, तो ये थॉट बहुत ही अच्छा है। बट ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव से टेम्पल तो थोड़ा सोचेगा ना भाई स्टैंडर्ड उनके मेंटेन रहे, तो वो पूछेंगे इमीडिएटली कि ब्राह्मण दीक्षित हैं क्या। बोले नहीं, हम तो आज ही आना शुरू किए हैं। बोले ठीक है, हाँ। फिर आप थोड़ा भक्ति अच्छे से कीजिए, फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन ले लीजिए, फिर हम आपको अंदर अलाउ कर देंगे। हम्म।
तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि जिसको आप ये ट्रेनिंग का पार्ट उनको जिसको आप माला करवाना चाहते हैं उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि ठीक है आप अभी 16 माला करना शुरू कीजिए और फिर मैं इनसे दोबारा बात कर लूंगी आपकी सेवा के लिए। करेक्ट है ना? हाँ, एक पॉइंट बोलिए। आई थिंक केस में जैसे टेम्पल का तो वो स्टैंडर्ड है ही, तो उसके केस में आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर कि घर में भी डीटीज के विग्रह लाके या उनका पिक्चर है और सेम सेवा घर में कर सकते हैं अगर इतनी डिजायर है वो वाली कि हमें फ्लावर की माला बनानी है, या क्योंकि हर टेम्पल का अपना एक स्टैंडर्ड है। यूएस में अलग है, यहाँ पर नहीं चाहिए आपको, केवल किचन में भगवान की पूजा के लिए चाहिए, ऑल्टर पे जाने के लिए चाहिए, लेकिन माला बनाने के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो इट्स डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर, एवरी लोकेशन, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस। और एक और मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा था, जो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास कोई आए थे ना व्यक्ति, और कोई बड़े व्यक्ति थे वो, तो शायद मेरे को एग्जैक्टली स्टोरी भूल गया हूँ, बट कितने टाइम तक उन्होंने किचन में उनसे सेवा करवाई थी केवल बिफोर एनीथिंग। इफ अगर आपको कुछ याद आ रहा हो उसके बारे में। हाँ नहीं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास आए थे तो वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे उनसे, कहे कि तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि ये जरा आप उधर किचन में चले जाइए डिवोटीज के साथ। बोले क्या बात? बोले उनको कुछ हेल्प चाहिए, जरा आ जाइए फिर आपका उत्तर देता हूँ मैं। फिर आए दोबारा हेल्प वगैरह करके, बोले बैठो, कुछ प्रश्न था, पूछे हुए वो प्रश्न। तो भक्ति ठाकुर बोले कि अरे मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा, उस कमरे में झाड़ू नहीं लगी, आप लगा देंगे क्या जरा? तो फिर थोड़ा काम वाम और कराया उनसे सेवा। फिर वो आके बैठे तो पूछे, वो कहे कि आप बताइए क्या प्रश्न है? बोले नहीं, अब मुझे आंसर मिल गया। तो सेवा से उनका डाउट क्लियर हुआ था। तो वैसे तो सेवा की कमी नहीं रहती है मंदिर में माता जी, अगर आप जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट से या किसी से कहेंगे ना, तो हो सकता है वो ऐसी सर्विस दे दे जिसमें यू नो वैसे कम स्टैंडर्ड्स हों सर्विस के। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी, टेम्पल में तो बहुत सर्विस होती है। प्रभु जी, अब जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि यूएस में सिर्फ मंदिर मतलब हाँ, जो यूएस में नहीं है कि 16 राउंड्स का होता है, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा गाजियाबाद में। एनीवन कैन कुक। अब हम या बनाते बहुत सारे डिवोटीज के लिए मिलके, तो वो सारी लेडीज ही मिलके बनाती हैं। या सो वेरीज एक्चुअली, टेम्पल का वेरी करता है। जैसे यहाँ पे अगर ये स्टैंडर्ड कर देंगे, मिलेंगे ही नहीं, भक्ति नहीं मिलेंगे, फिर तो सर्विस ही नहीं हो पाएगी यहाँ पे। जी सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी, 1 मिनट से कम बचा है। जी 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 ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। बस प्रभु जी एक चीज और, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हम इस लायक ही नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना हम तुच्छ हैं, हम कैसे सेवा कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी भगवान की माला नहीं तो की। तुच्छ रहना नहीं है हमें, वही कई बार ऐसा हम सोचते तो है, बट हम फिर इसी समय ये सोचे कि नहीं, हम तुच्छ रहना नहीं है हमें। ऐसे तो तुच्छ सोचते हो, तुच्छ ही तुच्छ मर जाएगा। नहीं नहीं, मतलब वो इम्प्रूव तो करेगा अंदर से, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, वो ये मान के चले कि ठीक है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे क्वालिफाइड बनना है। नहीं मतलब बुरा नहीं लगेगा ना फिर, ऐसा कोई कुछ कहता है तो बुरा नहीं लगेगा ना कम से कम। हाँ, बुरा